شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 9، اللہ مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ہے، اور آج اس سبق کا ہم چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ جی بچوں، آج کے سبق کے ہمارے حاصلات تعلم ہیں نثری تحریر میں امتیاز کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لطائف پہیلیاں پڑھتے ہوئے ان میں پوشیدہ دانش سمجھ کر بتانا۔ یعنی ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آج کے سبق میں آپ نے سیکھنا ہے نثری تحریر میں امتیاز یعنی فرق کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لطائف اور پہیلیاں، ان میں جو پوشیدہ دانش ہے اس کو سمجھ کر بتانا۔ پہلے ہم کیا کریں گے، اپنے سبق کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی اور مزاح کا انداز نہایت شائستہ، سچی باتوں پر مشتمل اور کسی کو توہین اور مذمت اور جھوٹ سے پاک ہوتا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہ تو کسی کو دکھ پہنچاتے تھے اور نہ ہی متانت کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا لطیفہ یا مزاح جو حد سے بڑا ہوا ہو، اس سے کسی کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہو اور یاد خداوندی سے غافل کر دینے والا ہو، ہماری شریعت میں وہ جائز نہیں ہے۔ لطیفہ یہ کیونکہ ہمارا حاصلات تعلم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے لطائف کی ایک وضاحت دی گئی ہے کہ لطیفہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے مزاح کرتے تھے، ان کی مزاح میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ بچوں، اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے دہرائی کے طور پر۔ آپ نے پہیلیاں پڑھی اور سنی ہوں گی، پہیلی بوجھنے کا کوئی ایسا طریقہ بتائے جس سے جواب دینا آسان ہو جائے۔ بچوں، کیونکہ پہیلیاں ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عام روزمرہ زندگی کا بھی حصہ ہے۔ ہم کھیل کود کے دوران میں جب ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے پہیلی پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے، کیونکہ آپ نے تو بہت جگہ پہیلیاں بھی پڑھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، دوستوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے فارغ اوقات میں تو ہم پہیلیاں پوچھتے ہوں گے۔ تو آج آپ بتائیں کہ پہیلیاں بوجھنے میں کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، جب آپ سے پہیلی بوجھی جائے تو آپ کیسے لفظوں کو سوچیں اور جواب دیں۔ اس کا جواب آج آپ نے دینا ہے کہ پہیلی بوجھنے کا کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جواب یوں منٹوں میں آ جائے۔ اس سرگرمی کو یہاں پر روکیں اور اپنے جواب کو سوچ کر معلم کو درست جواب بتائیں اور شاباش وصول کریں۔ شاباش بچوں، آپ نے اپنا طریقہ بہت اچھی طرح بتایا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں، آج آپ کیا سیکھنے والے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے نثری تحریر میں امتیاز کرنا۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے سبق نمبر 10 پڑھایا جائے گا، نیز لطائف اور پہیلیاں پڑھتے ہوئے پوشیدہ دانش سمجھ کر بتانے کی مشق کروائی جائے گی۔ یہ آج کا ہمارا جو تدریس کا موضوع ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے نثری تحریر میں امتیاز کرنا اور لطائف اور پہیلیاں سن کر اس میں پوشیدہ دانش کو سمجھ کر بتانا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے سبق کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ نثری تحریر میں امتیاز کرنا، سبق نمبر 8 علامہ اقبال اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتایا جا چکا ہے۔ جو ہمارا سبق نمبر 8 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ کو نثری تحریر میں فرق کرنے کی وضاحت دی جا چکی ہے، اور پہیلیاں اور لطائف پڑھ کر ان میں پوشیدہ دانش سمجھ کر بتانے سے متعلق وضاحت بھی سبق نمبر 5 ماحولیاتی آلودگی میں دی جا چکی ہے۔ یہ دونوں وضاحت آپ کو اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے، جو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی، لیکن ہم ایک سرگرمی کریں گے تاکہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس سبق ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے سبق پڑھیں گے۔ ہمارا جو سبق ہے آج کا، اس کے پہلے ہم خاص الفاظ دیکھیں گے۔ ماہر، نشانہ باز، جاڑا، ٹھٹھرنا، وول، فطرت، پھڑپھڑانا، بیٹھک، عقب، گلیل، بلند قامت، ورد، بے ضرر، جھپٹ، پرخچے اڑانا، پر تولنا، واضح، دو چند۔ جی بچوں، نثری تحریر میں فرق کرنا آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، سبق نمبر 8 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ لیکن ہم اپنے آج کے سبق کو، جو ہمارا سبق نمبر 9 ہے، اللہ مسکینوں
और मजलूमों के साथ है। इस सबक की पढ़ाई के दौरान भी आपको नसरी तहरीर में फ़र्क करना बताएंगे, उसके बाद हम सरगर्मी की तरफ भी जाएंगे। सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि सबक को शुरू करने से पहले हम खास अल्फाज पढ़ते हैं और खास अल्फाज पढ़ने के बाद हम अपने सबक के मतन की तरफ जाते हैं। हमारा सबक शुरू होता है इस तरह। शुरू में अब्दुल्ला ने गुलेल का निशाना लेने की मशक का आगाज किया, इसके बाद इसने तीर कमान बना ली। अब वो एक माहिर निशाना बाज बन चुका था, वो एक बड़ा माहिर शिकारी बनना चाहता था। इसका ख्वाब था कि वो अपनी निशानाबाजी और शिकार की सलाहियत से कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे जो उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दे। अपने शिकार के शौक के बावजूद उसने अपनी तालीम जारी रखी और 10वीं जमात तक पहुंच गया। ये कहानी बयान की जा रही है अब्दुल्ला से मुतल्लिक। अब्दुल्ला का शौक क्या था? अब्दुल्ला एक माहिर शिकारी बनना चाहता था और उसने क्या कर रखा था, अपने पास एक गुलेल बना रखी थी। ये कहानी में पहला किरदार हमारा जो है वो अब्दुल्ला का किरदार है। एक दिन वो हस्बे मामूल शाम को तीर कमान लेकर जंगल में चला गया। पहले तो उसने क्या किया था, गुलेल थी, फिर उसने तीर कमान रख लिया और एक दिन क्या किया, वो जंगल में चला गया। जाड़े का मौसम था। जाड़ा क्या होता है? सर्दियां। हर चीज ठिठरी हुई थी। परिंदों के गोल अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। इन्हीं परिंदों में फाख्ता भी शामिल थी। फाख्ता परिंदों में सबसे सादा, मासूम और बेजरर परिंदा है। हमारी कहानी का दूसरा किरदार क्या है? एक परिंदा है छोटा सा जो बड़ा ही सादा और मासूम है और उसका क्या नाम है? फाख्ता। ये हमारी दो कहानी के किरदार हैं। और यहाँ तक जो जैसे मैंने सबक को पढ़ा है बाआवाज़े बुलंद, मौलम भी जुमात में इसी तरीके से आगे के सबक को पढ़ेंगे, बाआवाज़े बुलंद पढ़ेंगे। जो लफ्ज मुश्किल उनको लगता है कि लफ्ज मुश्किल है बच्चों के लिए, उसको आसान जुमलों में बच्चों को उसका मफहूम वाज़े करें, बच्चों को उनको समझाएं ताकि बच्चों के लिए समझना आसान हो जाए और उनको वो सबक बासानी ज़हन नशी हो जाए। जी बच्चों, अब हम अपने हासिलात ताल्लुम की तरफ बढ़ेंगे। हम करेंगे सरगर्मी। आपने करना क्या है? सबक नंबर 9, अल्लाह मस्कीनों मजलूमों के साथ है। पढ़ने के बाद जमात से पूछे कि मुसन्निफा ने इस सबक में कौन सा अंदाज़े बयां अपनाया है। आपने सबक जो अभी मौलम ने जैसे बाआवाज़े बुलंद पढ़ के आपको बताया, आपको ये क्योंकि कहानी की सूरत में लिखा हुआ है, आपको पसंद भी आई होगी कहानी ये पढ़ने के बाद। कहानी पढ़ने से पहले हमने क्या किया, खास अल्फाज पढ़े। अब आपकी बारी है कि सरगर्मी के तौर पर आपने इस सबक को पढ़ना है और आपने बताना है कि जिस मुसन्निफा ने इस सबक को लिखा है उसने इस कहानी में, इस वाक्य में कौन सा अंदाज़े बयां इख्तियार किया है जो आपको समझ में आता है। इसको सोचें और जवाब दें। इसके साथ साथ बच्चों आपने क्या करना है, मौलम जो है आपके मकतब खाने से मुख्तलिफ नसरी अंदाज़े बयां की किताबें लाकर उनके चंद जुमले तलबा से पढ़वाएं। पढ़ाई के बाद जमात से तहरीर का अंदाज़े बयां पूछें, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम क्या है, तहरीरी नसरी तहरीर में इम्तियाज करना, जिसकी वजाहत आपको दी गई है सबक नंबर 8 में कि हमारी नसरी तहरीर का अंदाज़े बयां 5 तरह का होता है। एक होता है अदबी, एक होता है सहाफ़ती, एक होता है दफ्तरी, फिर कानूनी और तकनीकी। ये आपको सबक नंबर 8 में इसकी सारी वजाहत दी जा चुकी है। आपने उन्हीं सबक नंबर 8 के उस मौजू को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा सबक नंबर 9 है उसमें आपने पहचानना है कि मुसन्निफा ने कौन सा अंदाज़े बयां अपनाया है। आया वो अदबी है, कानूनी है, तकनीकी है या फिर दफ्तरी है या सहाफ़ती है। वो आपने पहचानने के बाद फिर आपके मौलम जो है मकतब खाने से कुछ किताबें लेकर आएंगे, उसके आपने कुछ जुमले पढ़कर बताने हैं कि इन किताबों में जो अंदाज़े बयां मुसन्निफीन ने इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, ताकि आपको नसरी तहरीर में फ़र्क करना आ जाएगा, बेहतर अंदाज में आ जाएगा। आप कोई भी तहरीर पढ़ेंगे, उसका छोटा सा इक्तबास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुसन्निफ ने इसमें कौन सा अंदाज़े बयां अपनाया है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और अपनी इस सरगर्मी को हल करें। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं और आपको नसर की तहरीर में फ़र्क करना बड़े अच्छे तरीके से आ गया है, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 हैं, सबक हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा हासिल ताल्लुम है वो है लताइफ और पहेलियों से मुतल्लिक। मुअल्लिम जमात को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे और उनसे 3-3 लताइफ सुनाने के लिए कहेंगे। सरगर्मी खत्म होने के बाद तमाम जमात से राय लें कि किस ग्रोह के लताइफ ज्यादा दिलचस्प और मजा से भरपूर थे। मुअल्लिम क्या करेंगे, जमात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए, एक ग्रोह भी लतीफ़ा सुनाएगा, दूसरा ग्रोह भी लतीफ़ा सुनाएगा। लेकिन किस बात से अंदाजा होगा कि
जब आपको लतीफ़े में पोशीदा दानिश को समझना आ जाएगा, जब आप समझ जाएंगे कि इस लतीफ़े में क्या बयान किया गया है, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा लतीफ़ा ज़्यादा दिलचस्प है, मिजाज से भरपूर है। तो इस सरगर्मी को एक मुकाबले के तौर पर करें। दोनों ग्रोह बारी बारी आकर सामने तमाम अपने जमात के साथियों को लताइफ सुनाए और फिर राय ली जाए कि किसका लतीफ़ा ज़्यादा मज़ेदार था, मिजाज से भरपूर था, दिलचस्प था। शाबाश बच्चों, आपने लतीफ़े भी बहुत अच्छे सुनाए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा जब हम लताइफ सुना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे सबक का दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? मश्क के सवालात। जो सबक हमने आज पढ़ा है नसरी तहरीर में इम्तियाज करने के लिए, को समझने के लिए कि नसरी तहरीर में किस तरीके से फ़र्क किया जाता है, उसी सबक से मुतल्लिक सवाल हैं कुछ। सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर आपको 5 सवाल नजर आ रहे होंगे। आपने इन सवालात को पढ़ना है, जो सबक आज पढ़ाया गया है, जिसको आपने दोबारा भी पढ़ा है, एक दफ़ा मौलम ने पढ़ा है, एक दफ़ा आपने पढ़ा है, उसी सबक से मुतल्लिक ये सवालात हैं। आपने इन सवालात को बगौर पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है, और फिर इनके जो जवाबात हैं वो आपने कहाँ पर लिखने हैं। इसका जवाब आप मुझे देंगे कि हम अपना मश्क का सवाल कहाँ पर करते हैं। बिल्कुल ठीक, हम अपने मश्क का सवाल करते हैं कॉपी पर। और ये सवाल भी आपने अपना सवाल नंबर 1 कहाँ पर करना है? कॉपी पर करना है। इसी तरह हमारे मश्क का एक और सवाल भी होता है, वो है सवाल नंबर 2। इस सवाल में बच्चों आप क्या करते हैं, इस सवाल को आप कॉपी पर ही हल करते हैं। और कैसे हल करते हैं? एक सवाल आपको दिया जाता है और उसके 4 मुमकिना जवाबात आपके सामने होते हैं, और उसमें से आप क्या करते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं और उसको किताब पर ही हल करते हैं। ये दोनों सवालात आप हल करेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों आपका एक और भी काम है, वो ताकि आपको जो आपका सबक है आज का, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा हासिल ताल्लुम का एक और हिस्सा था पहेलियां। हर तालिब इल्म घर से 2-2 पहेलियां लिख कर लाए और जुमात को सुनाए, ताकि तलबा पहेलियों में पोशीदा दानिश समझकर बता सके। ये बच्चों आपका घर का काम है, ठीक है। पहेलियां आपने घर जाके 1 या 2, जो भी जितनी भी आपको बासानी मुयस्सर आ जाए, मिल जाए, या आपको याद हो, आपने वो या तो लिख कर लेकर आनी है। अगर तो याद है तो इसी तरह आकर अगले रोज अपनी जुमात में अपने साथियों को, अपने मौलम को सुनाए, और जुमात के बाकी तालिब इल्म क्या करेंगे, उसमें पोशीदा दानिश को समझते हुए जवाब देंगे। ये आपका घर का काम है। कॉपी का काम अगर आपका जुमात में खत्म हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने लताइफ की भी एक सरगर्मी की है। उसके साथ हम पहेलियां जो है वो घर जाके सोच कर आएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अगले रोज पहेलियां अपने हम जमातों को सुनाएंगे, और उसमें से जो पोशीदा दानिश को समझते हुए जो हम जमात हैं फिर जवाब देंगे। जी बच्चों, मुझे यकीन है कि आज का सबक आपके मिजाज के मुताबिक होगा। लताइफ और पहेलियां पढ़कर आपको बहुत मजा आया होगा, और इसके साथ साथ आप जो कहानी है हमारी सबक नंबर 9 में, उसको पढ़कर भी आप बहुत महजूज हुए होंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूंगी बच्चों। कल मैं दोबारा मिलूंगी आपसे एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और अपना काम भी आपने मुकम्मल करके अगले रोज अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। तब तक कल तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मैं आपकी मौलमा हिना। खुदा हाफिज, शुक्रिया।